Hello everyone, good morning students. In the last video we have discussed about acceleration in non-uniform motion. So today we are going to discuss some further part of that topic. So acceleration of a particle is defined as time rate of change of its velocity. So average acceleration can be given as A average will be equal to V2 minus V1 upon T2 minus T1. V2 is final velocity, V1 is initial velocity. In the similar way, time is here. So, A average is this. If you will take the instantaneous acceleration, और A average को हम डेल्टा V अपॉन डेल्टा T से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं. बेटा मैंने आपको बताया था कि जब हमारी लार्जर इंटरवल की बात करते हैं तो हम डेल्टा से बात करते हैं, लेकिन जब हम इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे तो अगर हम पर्टिकुलर मोमेंट पे कोई एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, देन दैट एक्सेलरेशन विल नोन एज instantaneous acceleration. When we will find out instantaneous acceleration, then we have to convert the delta t, that is time that should be equal to 0. So you can see here that A acceleration will be equal to limit delta t tending to 0 delta v upon delta t. It means when you will apply the limit, then A will convert it as dv upon dt, and when you will write v is equal to ds upon dt, that is rate of change of displacement, then you can write it as A is equal to d2s upon dt2. I hope आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का ये एक्सप्रेशन क्लियर हुआ. अब हम एक्सेलरेशन से रिलेटेड कुछ और टर्म्स भी पढ़ते हैं बेटा. एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यू ऑल नो दिस थिंग वेरी वेल. डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इन द बॉडी. As we know that displacement can be positive, negative or zero, in the similar way velocity can be positive, negative, zero, and in the same way acceleration can be either positive, negative or zero. Acceleration of a body is zero when the body is moving with uniform velocity, because in case of uniform velocity throughout the whole motion the velocity of the particle is constant. There will be no change in velocity, that means there is no acceleration. Acceleration is measured in CGS, it is measured in centimeter per second square. SI, it is measured as meter per second square, and practical unit it is measured as kilometer per hour square. I hope आपको ये चीजें क्लियर हुई. अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ. आगे हम डिस्कस करते हैं बेटा व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? जब हमारा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो भी इक्वल रेट से चेंज हो रही है. इट मीन्स इफ इक्वल चेंज ऑफ वेलोसिटी टेक प्लेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, time interval may be how much small, so in that case the particle is said to be in uniform acceleration, or you can say a body has to uniform acceleration if its velocity changes at a uniform rate. For example, you can take an example of a freely falling body which is uniformly accelerated. Let us suppose this is a point from where we are holding our ball, and this is the point at the ground, this is a plane at the ground. We are having a ball at the upper plane, and now we have to just drop a ball towards the ground. So in this motion you can see that there is no force applied on the body. We are just freely the ball is just freely falling. In that case there will be only acceleration due to gravity applying on this ball. So, and we know that acceleration due to gravity is a constant acceleration. So this is the case of uniform acceleration. Now you can take another example, motion of a sliding block. Let us suppose this is an inclined plane. Inclined plane क्या होता है बेटा? जब कोई प्लेन ओरिजिन से किसी एंगल के ऊपर इंक्लाइंड रहता है, that plane is basically known as inclined plane. इसके ऊपर कोई बॉल रखी है, ब्लॉक रखा है, इस ब्लॉक को अगर हम थ्रो करते हैं तो ये भी हमारा यूनिफॉर्म मोशन के अंदर ही नीचे आता है. सो दीज आर द टू एग्जांपल्स ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. नाउ नेक्स्ट टर्म इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हमारी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, इफ दैट इज नॉट कांस्टेंट, देन इट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. A body is said to be moving with non-uniform acceleration if its velocity increases with unequal amount in equal interval of time. For example, you can say आपकी crowded मार्केट में है आप, और वहां पर आपकी कार आप चला रहे हैं, तो
आपकी जो कार है वो ट्रैफिक के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी। टाइम तो हमारा कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है, बट कार की वेलोसिटी आपका डिपेंड करेगा बेटा ट्रैफिक पे। अगर ट्रैफिक कम होगा, ट्रैफिक धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है, तो आपकी कार की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। जबकि ट्रैफिक अगर बना हुआ है, हैवी ट्रैफिक है, रेड लाइट है, तो वहां पर आपका जो वेलोसिटी है वो बहुत कम इंक्रीज होगी। इट मीन्स कि अनइक्वल टाइम इंटरवल में हमारी जो वेलोसिटी है उसमें चेंज अनइक्वल आया है। सो यू कैन सी इन दिस डायग्राम दैट दिस कार इज मूविंग एंड दिस कार इज मूविंग विद वेरी स्मॉलर वेलोसिटी एट द एंड पॉइंट। सो दिस इज द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नेक्स्ट हमारी टर्म आती है बेटा रिटार्डेशन, डी एक्सेलरेशन या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन। आपको अगर मैं इसको समझाना चाहूँ तो मैं आपका एग्जांपल लेती हूँ। व्हेन यू विल स्टार्ट योर स्कूटी, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू इंक्रीज योर स्पीड। इंक्रीज करने पर आपकी गाड़ी फास्टली मूव करने लगती है। लेकिन जब आप घर पहुंच जाते हो, पूरा आपका जो भी आपका काम है, आप घर पहुंच गए, आपको आपकी स्कूटी रोकनी है, तो आप क्या करोगे बेटा? आप उस केस के लिए अपनी स्कूटी पे ब्रेक अप्लाई करोगे। तो ब्रेक तो हम बोलने की टर्म में अप्लाई कर देते हैं कि हमने ब्रेक अप्लाई किया है। व्हाट इज हैपनिंग एग्जैक्टली इन दैट situation? So speed, or you can say the velocity of the scooty is decreasing. Now this is the basic term of retardation. When the velocity is decreasing with respect to time, then that body is said to be in retarded motion, or you can say deaccelerated motion. You can look at this example. कार हमारी लास्ट में जाके बिल्कुल रुक गई है, मतलब कि हमने इसके ऊपर डीएक्सेलरेशन किया है। इट मीन्स कि हमने रिटार्ड किया है। अब इससे आगे हम बात करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ की। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में पोजीशन टाइम ग्राफ हमारे किस तरह से होंगे? तो बेटा जो फर्स्ट कर्व है ये हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन के साथ है, जबकि जो सेकंड कर्व है ये हमारा डिक्रीजिंग है। इट मीन्स कि ये नेगेटिव कर्व के साथ है। हम किसी भी चीज को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? उसके स्लोप की हेल्प से बताते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक्सेलरेशन कैसा है बेटा? यहाँ पर हमारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। और ये जो केस है हमारा, इस केस में आप क्या बोलोगे कि पोजीशन के इंक्रीज होने के साथ में टाइम भी इंक्रीज हो रहा है। इस केस में हमारा जो कर्व है वो डिक्रीजिंग है। इसके लिए मैं आपको अभी पैराबोला से रिलेटेड कुछ टर्म्स एक्सप्लेन करूंगी, जो कि आपके मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे, जिसकी हेल्प से आप यहाँ पे बता पाओगे। लास्ट वाला एग्जाम्पल तो आपको समझ आ जाएगा बेटा। इस केस में जीरो एक्सेलरेशन है, क्योंकि पार्टिकल हमारी सेम पोजीशन एक कांस्टेंट रेट पर इंक्रीज हो रहा है। अभी हम आगे बात करते हैं कुछ मैथमेटिकल टूल्स की, उसके बाद में हम इस स्लाइड को डिस्कस करते हैं। हाँ बेटा, तो इसमें आप देखिए हमें कुछ जनरल इक्वेशंस होती हैं पैराबोला की, जो कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे कर्व के हिसाब से किस तरह से वो इक्वेशंस होती हैं। तो हमारे पास बेसिकली दो तरह के पैराबोला होते हैं बेटा। पैराबोला की बेसिक टर्म मैं आपको बताती हूँ कैसे होता है। एक साइड में आपका स्क्वायर फैक्टर होता है, एक साइड में आपका लीनियर फैक्टर होता है। तो यहाँ पर देखो y और x में आपका पैराबोला है। y और x आपके वेरिएबल हैं, y का स्क्वायर है और x का लीनियर है। जब आपके पास कोई भी ऐसा रिलेशन दिया हुआ हो जिसमें एक साइड में स्क्वायर का टर्म हो, एक वेरिएबल का लीनियर टर्म हो, तो आप उसको बोल सकते हो कि ये जो इक्वेशन है दिस कैन बी ऑफ पैराबोला। देन वी विल चेक इट। अगर हमारे पास हम बात करते हैं बेटा y इक्वल टू 4ax की, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x की, तो इसका कर्व हमारा इस तरह से बनता है बेटा। इसका जो कर्व चेक करेंगे, इसका जो स्लोप चेक करेंगे, जब आप इसके कर्व के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो आप देखोगे कि इसका जो टेंजेंट आएगा वो tan थीटा हमारा पॉजिटिव आएगा। इट मींस कि इसका जो हमारा स्लोप आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अब बेटा अगर हम बात करते हैं कि y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax की, तो केवल x के रेस्पेक्ट में इस इमेज को हम क्या कर देंगे, इन्वर्ट कर देंगे, बस उसकी सिमेट्री शो कर देंगे। तो ये हमारी क्या होगी बेटा, x के रेस्पेक्ट में देखो हमने इसको मिरर इमेज ले ली है। अभी ये पॉजिटिव x के अलोंग थी, अभी ये नेगेटिव x के अलोंग आ गई। तो ये वाला जो कर्व है ये बेसिकली आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax का कर्व है।
अब इससे आगे हम बात करते हैं बेटा, अगर यही कर्व हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay में आ जाए, यहाँ पर x का स्क्वायर है और y हमारी लीनियर टर्म है, तो भी आप क्या बोलोगे कि दिस इक्वेशन कैन बी अ पैराबोला। तो इस स्टेट में हमारा कर्व क्या होगा बेटा, y एक्सिस के अलोंग हमारा सिमेट्रिक कर्व होगा। अब इसके आगे हम अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay की बात करते हैं, तो y के रिस्पेक्ट में हमारा कर्व क्या हो जाएगा बेटा, इन्वर्ट हो जाएगा। सो यही जो टर्म्स थी ये हमें बतानी थी कि पैराबोला की बेसिक इक्वेशंस किस तरह से होती हैं। अब हम इससे आगे देखते हैं बेटा, यहाँ पर हम बात करते हैं बेटा जो हमारा पहला कर्व है पॉजिटिव एक्सीलरेशन का, इसमें हम कैसे देखेंगे बेटा कि अगर हम पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप की बात करते हैं दैट विल कम आउट पॉजिटिव, while we will consider the what पोजीशन टाइम ग्राफ के स्लोप की बात करते हैं सेकंड केस में, तो इसमें नेगेटिव आएगा। और जो हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप बताएगा दैट विल गिव यू द वेलोसिटी, और वेलोसिटी ही आगे हमारी किसकी टर्म के लिए वो होगी बेटा, रिस्पॉन्सिबल होगी, एक्सीलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, बिकॉज एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो जिस भी तरह का हमारा वेलोसिटी का चेंज होगा उसी तरह का हमारा एक्सीलरेशन का चेंज होगा। तो फर्स्ट केस में हमारा पॉजिटिव एक्सीलरेशन होगा, सेकंड केस में हमारा नेगेटिव एक्सीलरेशन होगा। लेकिन थर्ड केस में जब आप देखेंगे बेटा, तो जब आप इसका स्लोप फाइंड आउट करोगे तो वो स्लोप हमारा कैसा आएगा, आप देख रहे हो कि इसकी वेलोसिटी कैसी है, इस पार्टिकल की स्लोप आपका इस कर्व के हर एक पॉइंट के ऊपर इक्वल कर्व आ रहा है। जो आप इस वाले डायग्राम में देखोगे तो खुद ही एक स्ट्रेट लाइन है, इस पाथ के हर एक पॉइंट के ऊपर हमारा स्लोप कैसा आएगा, सेम आएगा। अगर स्लोप सेम आ रहा है, स्लोप ही हमारा क्या देता है बेटा, वेलोसिटी देता है। और हमें पता है जब वेलोसिटी सेम है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस आ गया, और अगर वेलोसिटी चेंज सेम है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, इट मीन्स कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज जीरो, इट मीन्स कि एक्सीलरेशन वहां पर जीरो हो गया। तो लास्ट केस में हमारा जो यूनिफॉर्म मोशन के अंडर जो एक्सीलरेशन है, इस केस में हमारा जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन जीरो है। आई होप आपको ये वाली स्लाइड क्लियर हुई। अब हम बढ़ते हैं इससे आगे। इससे आगे हम बात करते हैं बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड और डी एक्सेलरेटेड दोनों तरह के। इससे पिछली स्लाइड में हमने पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करी थी, अभी हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करते हैं बेटा। तो वाई एक्सिस पे हमने वेलोसिटी ले ली है, एक्स एक्सिस पे हमने टाइम ले लिया है। जब आपका वेलोसिटी इस तरह से इंक्रीज हो रहा है, स्ट्रेट लाइन है, जब आप इसका स्लोप फाइंड आउट करोगे दैट स्लोप विल गिव यू द एक्सीलरेशन। और आप इस केस में आप देखेंगे फर्स्ट केस में कि इसका जो स्लोप आएगा दैट विल बी पॉजिटिव बिकॉज द लाइन इज इंक्रीजिंग। तो इस केस में आपका जो स्लोप आएगा वो कैसा आएगा बेटा, पॉजिटिव आएगा। जबकि इस केस में आपकी लाइन डिक्रीजिंग है तो इस केस में जो आपका स्लोप आएगा वो नेगेटिव आएगा, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो आपको क्या देगा बेटा, एक्सीलरेशन देगा। तो यहाँ पे आपका नेगेटिव एक्सीलरेशन हो गया। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारी वेलोसिटी नेगेटिव है तो उस केस में हमारा जो एक्सीलरेशन आएगा वो केस क्या होगा। इन दोनों केस में तो हमारी वेलोसिटी पॉजिटिव थी, बट इस केस में हमारी मोशन की डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव है, तो इस केस में हमारा जो स्लोप आएगा वो नेगेटिव आएगा। इस केस में हमारा जो स्लोप आएगा वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पॉजिटिव आएगा, 0 से t1 टाइम तक का, और t1 से t2 तक का हमारा जो आएगा वो नेगेटिव एक्सीलरेशन के केस में आएगा। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई। इससे आगे बढ़ते हैं बेटा। अब इससे आगे बेटा हम स्ट्रेट लाइन की बात कर लेते हैं कि स्ट्रेट लाइन का कर्व हमारा किस तरह से होता है। तो अगर हम स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो हमारा जो स्ट्रेट लाइन में हम देखते हैं, जैसे अभी मैंने आपको पैराबोला का बताया कि पैराबोला में हमारा एक साइड में स्क्वायर का टर्म होगा, एक साइड में लीनियर टर्म होगा। लेकिन स्ट्रेट लाइन का जो कर्व होता है वो हमारा दोनों ही साइड में, एक्स और वाई दोनों ही लीनियर में होते हैं। तो देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ पर हमारा क्या है, y एक लीनियर टर्म है, y की पावर 1 है, x की पावर भी 1 है, एंड यहाँ पर बेटा हमारा स्लोप होता है किसी भी लाइन का, और c वहां पर इंटरसेप्ट होता है। c बेसिकली क्या होता है कि हमारा जब ओरिजिन से कोई लाइन पास नहीं होती है तो वो कितनी डिस्टेंस ओरिजिन के मतलब रेस्पेक्ट में कितना डिस्टेंस आगे या पीछे है, दैट इज बेसिकली नोन एज c। तो यहाँ पर जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ये डिस्टेंस है ये c है बेटा, दिस इज इंटरसेप्ट। अगर मैं इसका स्लोप फाइंड आउट करती हूँ, ये एंगल थीटा बताया है, तो अगर y बाई एक्स निकालू तो या m इक्वल टू टेन थीटा मैं बोल सकती हूँ। टेन थीटा आप यहाँ पे y बाई एक्स करके इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हो।
अगर हमारी लाइन जो है वो ओरिजिन से पास हो जाती है तो उस केस में हम बोलते हैं कि हमारा स्लोप कैसा है बेटा, सॉरी इंटरसेप्ट कैसा है, 0 है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ। इससे आगे की चीजें हम अगली क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक